নমস্কাৰ ভাৰতবৰ্ষক এবাৰ এক নম্বৰ দেশ কৰা সপোন দেখিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইয়াৰ বাবে এটা বিশেষ ফৰ্মুলা দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যিদৰে ৭৫ বছৰ পূৰ্বে দেশৰ জনতা এক হৈ ইংৰাজক খেদিছিল একেদৰে পুনৰবাৰ দেশৰ জনতাক এক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দেশৰ ১৩০ কোটি জনতাই আজি সংকল্প ল'ব লাগিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই আহ্বান কি সংকল্পৰ কথা কৈছে দেশৰ ১৩০ কোটি জনতাক তেওঁ সম্বোধন কৰিছে আমি সকলো একগোট হৈ ভাৰতক বিশ্বৰ এক নম্বৰৰ দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে আমি দেশৰ প্ৰতিগৰাকী শিশুক ভাল শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে সংকল্প ল'ব লাগিব তেতিয়াহে ভাৰত বিশ্বৰ এক নম্বৰৰ দেশ হ'ব নম্বৰ 1 হ'ব আমি প্ৰতিগৰাকী শিশুক বিনামূলীয়া শিক্ষা দিয়াৰ বাবে পণ ল'ব লাগিব বিনামূলীয়া শিক্ষা বহু দেশে দিয়ে আমিও দিব লাগিব বিশ্বৰ ৩৯খনকৈ দেশে যোগান ধৰি আহিছে বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰায় ১৭টাকৈ আহ্বান জনাইছে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত ১০ লাখ চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে আৰু ৪০ লাখতকৈ ওপৰ শিক্ষক আছে ৪০ লাখতকৈ অধিক শিক্ষক আছে ভাৰতবৰ্ষত তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে আমি ইচ্ছা কৰিলে দিল্লীৰ দৰে দেশ সলাই দিব পাৰোঁ কেৱল ইচ্ছা শক্তি লাগে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আমি মন্তব্য শুনাম কিন্তু যেহেতু আমাৰ সিস্টেম বেয়া গতিকে আমাৰ কামবিলাক হৈ নুঠে আমি সিস্টেম সলাব লাগিব সিস্টেম ঠিক কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ মাত্ৰ ৫ বছৰত এই সকলো সিস্টেম সলনি হৈ যাব ঠিক হৈ যাব আজিৰ পৰা ৭৫টা বছৰ পূৰ্বে ভাৰত এক হৈছিল আৰু আমি ইংৰাজক খেদি দিছিলোঁ পুনৰ এবাৰ ভাৰত এক হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আজি যদি দেশ একগোট হয় ভাৰতক বিশ্বৰ এক নম্বৰ দেশ হোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাৰতৰ সকলো লোকে বিশ্বৰ আন সকলো লোকতকৈ বুদ্ধিয়ক ইণ্টেলিজেণ্ট বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ যিকোনো লোকতকৈ ভাৰতৰ লোকসকল বেছি ভাল বিশ্বৰ এক নম্বৰৰ দেশ হ'ব পৰাকৈ ভগৱানে আমাক সকলো দিছে ভাৰতবৰ্ষক ভগৱানে সকলো দিছে দেশত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব ২.৫০ লাখ কোটি টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ বাবে গাঁৱে গাঁৱে হাস্পতাল সাজিব লাগিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা বিনামূলীয়া শিক্ষা আৰু সেই সংকল্প আমি ১৩০ কোটি জনতাই ল'ব লাগিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজিৰ দিনটোত দেশৰ ১৩০ কোটি জনতাক কি আহ্বান জনাইছে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ अपने देश के 130 करोड़ लोगों को आज संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अगर हम सारे मिलकर संकल्प लेते हैं
कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो अगला संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उसको हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, हर बच्चे के लिए करना पड़ेगा। देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, 50 लाख सरकारी टीचर्स हैं, 70 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब स्कूल तो हैं, टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं। सिस्टम खराब है। दिल्ली में भी सिस्टम खराब था, ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हम दिल्ली वालों को सिस्टम ठीक करना आ गया, अब भारत को सिस्टम ठीक करना आ गया। हमने दिल्ली में सिस्टम ठीक करके दिखाया है, अब पूरे देश का सिस्टम ठीक करना है अपने को, सबको मिलकर पूरे देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करना है। और ये 5 साल में हो सकता है। जैसे दिल्ली में 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक हुए, ऐसे पूरे देश के 5 साल के अंदर सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं। शर्त केवल यह है कि हम सब लोगों को इस बात का। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, 75 साल में हम पीछे क्यों रह गए, लेकिन अब पीछे नहीं रहेंगे। अगर 130 करोड़ लोग ये ठान लें कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 75 साल पहले पूरा देश इकट्ठा हुआ था, हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर पूरा देश इकट्ठा हो जाए तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आने वाला समय भारत का समय, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, और मुझे पूरा यकीन है बहुत कम समय में, आने वाले समय में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट लोग हैं भारत के लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए? फिर भारत पीछे क्यों रह गया? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, मिनरल और दिए। क्या नहीं दिया? भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह भारत को बनाया। और जब भगवान ने इंसान की रचना की, इंसान को बनाया, तो सबसे शानदार लोग, सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में बनाए। फिर भारत पीछे क्यों रह गया? आज दिल्ली के अंदर चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इलाज का हमने मुफ्त इंतजाम किया है। तो मैंने कैलकुलेट किया, अगर केवल मैं दवाइयों का, टेस्ट का, कंज्यूमेबल का खर्चा देखूं जो इलाज करने के लिए खर्च होता है, तो पिछले 3-4 साल से दिल्ली सरकार सबका इलाज, पूरा इलाज मुफ्त कर रही है। और औसतन दिल्ली के एक निवासी के ऊपर पर पर्सन दिल्ली सरकार का 2000 रुपए का खर्चा आता है। बस 2000 रुपए का साल का। किसी को कम की जरूरत पड़ती है, किसी को जरूरत नहीं पड़ती, कईयों को ज्यादा की जरूरत पड़ती है। औसतन 2000 रुपए का। पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं। व्यक्ति का, पूरे देश में हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मुफ्त में अगर हम इंतजाम कर दें, 2.5 लाख हो जाएगा। बस 2.5 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं है। पूरे देश के कितने लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूं जिनके पास पैसे नहीं होते, आत्महत्या कर लेते हैं पैसों की कमी के कारण। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में पैसे नहीं होते इलाज के, जमीन बेचनी पड़ जाती है, औरत के जेवर बेचने पड़ जाते हैं, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हम पूरे देश के सारे लोगों का, 130 करोड़ लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपए में इंतजाम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे। और ये नहीं कि और इसमें काफी सारे पैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खर्च कर ही रही हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा उसके पहले,
हमें चारों तरफ खूब सारे अस्पताल बनाने पड़ेंगे देश में, चारों तरफ खूब सारे मोहल्ला। अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं देश में, पहाड़ों में, इधर उधर आदिवासी इलाकों में कोई अस्पताल ही नहीं है, कई कई किलोमीटर तो कोई अस्पताल नहीं है। और कई जगह मैं देखता हूं कि इंश्योरेंस करा देते हैं कि ये लो इतने लाख रुपए का तुम्हारा 5 लाख का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेके आदमी क्या करेगा, अस्पताल ही नहीं है, इंश्योरेंस का क्या करेगा, अस्पताल तो चाहिए। देश को अस्पताल चाहिए, देश को मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, देश को दवाइयां चाहिए, इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। 5 साल के अंदर हम पूरे देश के अंदर अस्पताल खोल सकते हैं, 5 साल के अंदर हम पूरे देश में, इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक के लिए फ्री और शानदार इलाज का इंतजाम 5 साल के अंदर हम कर सकते हैं। और हाथ जोड़ के मैं एक बात कहना चाहता हूं, शिक्षा फ्री भी नहीं है, शिक्षा को फ्री भी मत कहिए, शिक्षा फ्री भी नहीं है। एक माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक टाइम की रोटी कम खा लेते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को फ्री भी नहीं देते। वो बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? वो बच्चे को पढ़ाते हैं ये बच्चा बड़ा होएगा, बड़ा आदमी बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। दोस्तों, हमारा 130 करोड़ लोगों का परिवार है, ये 27 करोड़ बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये कोई पराये बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। इसको फ्री भी मत कहिए। अगर पैसे की कमी है, हम सारे भारत के लोग एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बच्चों की शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आज हम लोगों को आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में यह प्रण लेना है कि हमें अपने भारत के एक एक बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना। दुनिया में 39 देश ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। 39 देश, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग। हमें भी ऐसे ही अमीर बनना है, नहीं बनना? अगर हमें भी अमीर देश बनना है तो सबसे ये देश अमीर क्यों बने? ये देश अमीर इसलिए बने क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। मैंने आपको उदाहरण दिया कुशाल गर्ग का, उसके पिताजी कारपेंटर हैं। आज कुशाल गर्ग पढ़ लिख जाएगा, पढ़ने के बाद उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। सोच के देखो, अगर हमने सारे 27 करोड़ बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, एक पीढ़ी के अंदर भारत की गरीबी दूर हो जाएगी और भारत अमीर देश बन जाएगा। शिक्षा से भारत अमीर देश बन जाएगा। और फिर से मैं निवेदन करता हूं, लोगों को अच्छा इलाज देना फ्री भी नहीं है, लोगों को अच्छा इलाज देना फ्री की रेवड़ी नहीं है। हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, भाई बहन बीमार हो जाए, बहन बीमार हो जाए, पिताजी बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, कुछ भी करना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, जेवर बेचने पड़े, हम इलाज कराते हैं, नहीं कराते? हमारा 130 करोड़ लोगों का परिवार है, 130 करोड़। आज हमें प्रण लेना पड़ेगा, 130 करोड़ लोगों में कोई भी बीमार होगा, हमारा देश उसका इलाज कराएगा, उसका फ्री में इलाज कराएगा। यह भी मैंने स्टडी किया, बहुत सारे अमीर देश, कनाडा, इंग्लैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सब लोगों ने अपने सारे लोगों का फ्री इलाज का इंतजाम कर रखा है। तो अगर भारत को अमीर बनना है तो अपने को शिक्षा का और इलाज का अच्छा, शानदार और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। अपने देश के 130 करोड़ लोगों को आज संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत को